हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज हमारा सब टॉपिक है अबाउट another प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड एंड द प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज विस्कोसिटी। और इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल मेक यू फेमिलियर with the idea of the viscosity, and then I'm going to take you further with the subtopics. So what I'm going to discuss with you today is about the viscosity. And to understand the viscosity, we have a law which is termed as a Newton's law of viscosity. To understand the Newton's law of viscosity, हमारे को दो terms पता होनी चाहिए, the velocity gradient and the viscosity coefficient. We will understand them in detail, and we are going to talk something which is known as Newtonian fluids. So, let's begin the session first of all by understanding from the image in the front of you the idea of the viscosity. So, what I have, we have two different liquids over here. We have a liquid which is water, and we have a liquid which is a syrup. And now what do? We take a stirrer and we stir the liquid. As you stir the liquid, you are able to see that the particles of the liquid are behaving differently in both the images. So what is happening in the first image, if you are able to see, there are lesser number of particles which are getting attached to that particular stirrer. लेकिन अगर आप देखें in the second example, you can see many particles which are getting adhered to that particular stirrer. बहुत सारे particles close आ रहे हैं उस stirrer के. So this visual, first of all, will make you understand that there is a difference in the behavior of the fluids. That difference in the behavior of the fluid over here is analyzed as a low viscosity measure and a high viscosity measure. Now we will be still imagining that what is the meaning of this viscosity. Viscosity को अगर हम easy तरीके से बोलें, so it is something which is a measure of the internal fluid friction. So that will be something to start with. That's an internal fluid friction. देखो भाई, solid friction के बारे में तो हम समझ चुके हैं. हम समझ चुके हैं sliding friction के बारे में, rolling friction के बारे में. And now is the time to actually talk about the internal fluid friction. Can you imagine that there is a meteor which enters into the Earth's atmosphere, and while it is trying to reach to the Earth's surface, before that it burns away. किसकी वजह से वो जो मीटियोर है वो बर्न हो गया और हमें मीटियोर शावर देखने को मिला, या हम उसको हिंदी में बोले टूटता तारा हमें देखने को मिला. तो ऐसा क्यों हो पाया? द रीजन इज बिकॉज द विस्कोसिटी ऑफ द एयर एग्जिस्टेड. अगर वो नहीं होती तो रेजिस्टेंस नहीं होता उस मीटियोर के मोशन पे, और वो मीटियोर जो आता वो हमारे अर्थ के सरफेस पे गिर के बड़े बड़े क्रेटर्स क्रिएट कर देता, जैसे कि मून के सरफेस पे होते हैं, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर की कमी है. So thanks to the atmosphere, we have a resistance. So I introduced to you the idea of the word resistance. So the viscosity, my friend, is basically a measure of the resistance to the fluid flow. Right? So if a fluid is flowing freely, in that case, we will say that it is going to be a lower viscous fluid, while if the flow of the liquid is retarded, that means it is moving slower. Like you can imagine a honey in a tube, and the tube is inverted, so the honey is going to move slower, which means it is going to be highly viscous fluid. To understand the behavior of the viscosity in details, we have certain laws to deal with. So what is the first law we are going to discuss about? That is the Newton's law of viscosity. So what are we going to study in the Newton's law of viscosity? That is the relative motion of the layers of the fluid, और उसकी वजह से किस तरीके से एक internal resistance develop होती है fluid के अंदर. The second idea which we are going to learn about is known as the Stokes law, where the Stokes law हमें ये बताता है कि किस तरीके से जो viscosity property है, it tries to oppose उस fluid में जब किसी solid को हम relatively move कराने की कोशिश करेंगे, या किसी और material को उस fluid के अंदर move कराने की कोशिश करेंगे. Just imagine a raindrop which is falling through the air medium. So in that case, there will be a resistance to that particular raindrop by the air medium. So that is understood via another law, जिसको हम Stokes law बोलते हैं. And the third is known as the Poiseuille's law and the Poiseuille's equation.
So this Poiseuille's law or the Poiseuille's equation explains how does a liquid actually moves, or what is the profile of the liquid movement inside a capillary or the tubes. जैसे आप समझते हैं कि आपके घर में पानी आता है तो पानी का पूरा नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है, तो किस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम करता है, दैट इज गाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर लॉ. सो दैट्स अ ओवरऑल स्टडी विच इज बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी. सबसे पहले हम एंटर करेंगे इनटू द आर्टिकल ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को समझने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिकल ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट. Now, first of all, let me write up that what I meant by when I said viscosity, that was supposed to be resistance to the fluid flow. So rather I should say that is the measure of या फिर index of the resistance to the fluid flow, and the viscosity once again is a property. टू हैव अ बेसिक नॉलेज, हमारे पास एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जिसको रियोलॉजी बोला जाता है, और जो रियोलॉजी होती है उसके तीन पार्ट्स होते हैं प्रॉपर्टी स्टडी करने के मटेरियल के. द फर्स्ट ऑफ दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी, द सेकंड इज प्लास्टिसिटी एंड द थर्ड इज विस्कोसिटी. तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. सो राइट नाउ इज द टाइम टू डिस्कस अबाउट द विस्कोसिटी. टू अंडरस्टैंड द विस्कोसिटी वी are taking a model which was given by the Newton as a plate model. Now, what is this plate model? You can imagine that there are so many identical plates which are stacked up. You can see that stacking of the plates, red colored plates over there. And now there is a yellow upper plate on it. Now, what do? We apply a force on the yellow upper plate. So, what happens if we apply the force on it? So, it naturally accelerates. So the topmost plate accelerates, but that topmost plate is attached in contact, we can say, with the second plate, and so it tries to move the second plate along with it. भाई देखो ऐसा है कि भाई ऊपर वाली प्लेट पे फोर्स लगी तो उसको तो मूव करना ही पड़ा. तो उसने क्या करा, अपने साथ में जो सेकंड प्लेट कॉन्टैक्ट में थी उसको भी बोला मेरे साथ चलो. पर वो जो प्लेट है वो मूव तो करना चाहती है नहीं. रीजन, उसके ऊपर तो फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो वो इनर्शिया को एग्जिबिट करने की कोशिश करेगी. अब वो, और सोचो, वो जो सेकेंड नंबर वाली प्लेट है अब उसको भी मजबूरी में चलना तो पड़ा. तो उसने क्या सोचा कि वो जो तीसरी नंबर वाली प्लेट है उसको भी साथ में ले चले, क्योंकि सेकेंड प्लेट थर्ड प्लेट के साथ कॉन्टैक्ट में भी है. सो थर्ड प्लेट को भी इसकी वजह से आगे चलना पड़ा, लेकिन वो चलना बिल्कुल नहीं चाहती थी. रीजन बिकॉज दैट द डायरेक्ट फोर्स वॉज नॉट अप्लाइड ऑन इट. एंड इन अ सिमिलर मैकेनिज्म क्या हो रहा है कि भाई लेयर टू लेयर, प्लेट टू प्लेट, मजबूरी में इन प्लेट्स को आगे बढ़ना पड़ रहा है, इन लेयर्स को आगे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वो नहीं बढ़ना चाहती हैं. The same analogy can be taken in the case of the fluid. So we can imagine that a fluid volume is made up of some layers. Now, have you seen that particular layers practically? You can do so by taking a water in a particular glass and then stirring that particular water in the glass. If you do so, you will be able to see the layers of the fluid. And one more thing, if you take off the stirrer, what happens? The fluid, the water, that eventually comes in a state of rest. तो कभी सोचा आपने कि क्यों, किस वजह से वो जो लिक्विड है जिसको आपने स्टर करा था वो अपने आप कैसे रेस्ट पर आ गया? The answer obviously is supposed to be what? The viscosity. So now we are going to understand this, let's say from a river flow. So what happens in the case of the river flow, that it is an uppermost layer of the river जिसके ऊपर हवा की फोर्सेस लग सकती हैं, टेंजेंशियल फोर्सेस लग सकती हैं, और इस वजह से उस लेयर को तो मजबूरी में मूव करना पड़ेगा. लेकिन उसकी जो नीचे वाली लेयर है शायद वो तो स्लो मूविंग लेयर है, तो वो तो रिलेटिवली उतनी फास्ट तो मूव नहीं करेगी. तो ऊपर वाली लेयर को हम बोल सकते हैं एज एन एक्सेलरेटेड लेयर और अ सुपर फास्ट लेयर. सुपर फास्ट लेयर क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी है, तो वह एक्सेलरेटेड लेयर है. और भाई उसके नीचे वाली को मजबूरी में मूव तो करना पड़ रहा है. अब भाई उसके भी नीचे लेयर है, उसके भी नीचे लेयर्स हैं. तो ये जो लेयर्स बाय लेयर्स हैं, सबसे पहले तो हमने क्या करा, हमने पूरे वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड को लेयर्स में ब्रेक कर लिया. तो हर एडजेसेंट लेयर्स के बीच में थिकनेस होगी,
तो उस पर्टिकुलर थिकनेस को हम dy से डिनोट कर लेते हैं। सो ये थिकनेस कितनी है, दैट इज dy। और ऐसे लेयर लेयर जो है हम एक एक करके ये समझ सकते हैं कि भाई सबसे ऊपर वाले लेयर की सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, उसके नीचे वाले की कम होगी, उसके नीचे वाले की कम होगी। इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन द एब्सोल्यूट स्पीड्स। तो अगर हम ऐसा सोचें कि अपर मोस्ट लेयर की स्पीड v के बराबर है तो उसके नीचे वाले की उससे कम होगी। कितनी होगी, v माइनस डी वी। उसके नीचे वाली लेयर की उससे कम होगी, कितनी होगी, v माइनस टू डी वी। तो ऐसा करते करते जैसे जैसे हम नीचे नीचे वाले लेयर्स पर जाएंगे तो स्पीड की वैल्यू कम होती जाएगी। सो अपर मोस्ट लेयर की स्पीड अगर v है तो नेक्स्ट वाले की v माइनस डी वी है, नेक्स्ट वाले की v माइनस टू डी वी है। ऐसा करते 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 नीचे पहुंचे तो सबसे नीचे वाले लेयर की स्पीड 0 हो गई। जैसे बॉटम ऑफ द लेक इज सपोज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, द बॉटम ऑफ द रिवर बेड इज सपोज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो वहां पे स्पीड 0 है बिकॉज ऑफ द एडेसिव एक्शन विद द सॉलिड। नीचे बेड ऑफ रॉक्स होंगे जहां पे एडेसिविटी की वजह से वहां पे मूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे कि ये लोएस्ट वाली प्लेट हो, एक तरीके से फिक्स प्लेट की तरह काम कर रही हो। यहाँ पर हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोल रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब अगर हम किसी भी दो लेयर्स को देख लें, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी आ रही है, डीवी आ रही है। किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच में देख लें, रिलेटिव वेलोसिटी डीवी आ रही है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है एक लेयर को रेस्ट पे रखो और उसके कंपैरेटिवली दूसरे लेयर की स्पीड को चेक करो। तो अगर आप इनकी रिलेटिव वेलोसिटी देखते हो तो कितनी बनी, डीवी बनी ना। दोनों को माइनस करो ना, वी माइनस डीवी माइनस हो भी कितना आएगा, डीवी आएगा, माइनस डीवी आएगा एग्जैक्टली। मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सेकेंड लेयर की स्पीड ऊपर वाले लेयर से कम है। और ऐसा कब हो रहा है, जब आप डी वाई डिस्टेंस नीचे मूव कर रहे हैं। और डी वाई डिस्टेंस नीचे मूव करो और रिलेटिव वेलोसिटी वापस से डीवी आएगी। तो किसी भी दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डीवी है। ऐसी टर्म को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज नथिंग बट एज डीवी अपॉन डी वाई। सो dv upon dy बेसिकली एक नेगेटिव टर्म है। व्हाई इट इज स्टेटेड एज नेगेटिव, रीजन बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे की तरह मूव कर रहे हो, एज द वैल्यू फॉर द y इंक्रीजेस द स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड देयरफॉर दिस टर्म इज टेकन एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट। इस टर्म को ओरिजिन अगर आप समझोगे तो बहुत ही आसान है कि अगर हमारे पास ये एक सॉलिड होता है, इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से, और हमने इसके ऊपर वाली लेयर पे फोर्स लगाई होती जैसा हमने ऊपर रेड प्लेट्स के आइडिया में देखा, तो भाई इसका शेप चेंज हो जाता और ये एक पैरेललो पाइप की तरह आपको दिखने लगता, जैसा हम इलास्टिसिटी के आर्टिकल में पढ़ते हैं। राइट, सो इस तरीके से इसका शेप जो है वो चेंज हो जाता, वो पैरेललो पाइप बन जाता। इसका मेजर हम पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज अ एंगल ऑफ शेयर एज थीटा। अब अगर ये रिलेटिव यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है x, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और ये साइड आप y के बराबर ले रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो x अपॉन वाई हो जाती है। ठीक है ना। नाउ अंडरस्टैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ शेयर। अब इमेजिन करो कि हम ये आइडिया दो लेयर्स के बीच में लगा लेते हैं और उनके बीच में रिलेटिव मूवमेंट देख लेते हैं। तो रिलेटिव मूवमेंट का मतलब है कि एक को आप रेस्ट पे रख लो, तो मान लेते हैं लोअर वाली को हमने रेस्ट पे रख लिया, उसको फिक्स कर लिया, तो जो ऊपर वाली लेयर है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट विल बी नोन एज डीवी। क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, डीवी है। एब्सोल्युटली देखोगे तो ऊपर वाले की वी है, तो उसके नीचे वाले लेयर की वी माइनस डीवी है, पर हमने क्या सोचा, रिलेटिव देख ले, तो लोअर वाले को फिक्स कर लिया, ऊपर वाले की डीवी हो गई। और कितने डिस्टेंस पे, डी वाई पे। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू बनती है दैट बिकम्स एक्स अपॉन डी वाई। और थीटा है क्या, दैट्स अ शियर स्ट्रेन। क्या है, शियर स्ट्रेन। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी, दैट बिकम डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी वाई। और ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है वही क्या है, दैट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स। और यहीं से इस टर्म का जन्म होता है, ओरिजिन होता है फॉर द velocity gradient. So what is velocity gradient also known as? Velocity gradient को बोला जाता है as a rate of shear strain। ये सारा आर्टिकल जो है वो shear में है, tangential forces के influence में है। तो सॉलिड्स में जब हम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम सारा कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं ऑन द टर्म shear strain।
लेकिन जब हम विस्कोसिटी एज एन आर्टिकल को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो आर्टिकल है दैट्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द rate of the shear strain. So now we have understood the velocity gradient. Now is the time to introduce the Newton's law of viscosity, जिसका कहना है कि जो shear stress होता है is directly proportional to the velocity gradient. Exactly, instead of the velocity gradient, you can also mention the rate of the shear strain. क्योंकि हम रेट ऑफ द shear strain को ऑलरेडी डाइल्यूट कर चुके हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी जो है उसको इजी फॉर्म में कैसे लिखेंगे डी वी अपॉन डी वाई. सो वी कैन राइट दैट द shear stress is proportional to डी वी अपॉन डी वाई. ठीक है, अब सिग्मा डी को कैसे लिखेंगे? एफ टी अपॉन ए is proportional to dv upon dy, which means the force is proportional to a into dv upon dy. And if we remove this proportionality sign, so we can introduce this as eta into a into dv upon dy, और इसमें जो eta term है that's introduced as the coefficient of a viscosity. And since we have already discussed about कि जो velocity gradient है वो negative है, so the overall expression becomes like this. Now, to understand the whole idea, हमने ऐसा समझा था कि जो ऊपर वाली लेयर है उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है v है, ले उसके नीचे वाले की स्पीड कम है v माइनस dv है, उसके नीचे वाले की कम है और कम होती जा रही है धीरे धीरे और नीचे जाके स्पीड ज़ीरो हो रही है. ऐसा हो क्यों रहा है? तो थ्योरी ऐसा कहती है that every fast moving layer will try to deaccelerate the slow moving layer, while every slow moving layer will try to deaccelerate the fast moving layer. जो भी fast moving layer है, I repeat again, every fast moving layer will try to accelerate the slow moving layer, right? And every slow moving layer will try to deaccelerate the fast moving layer. लेकिन समस्या क्या है कि जो स्लो मूविंग लेयर्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है ना. ये जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी क्या है? स्लो मूविंग लेयर्स हैं. इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इफेक्टिवली जो इफेक्ट क्रिएट होगा वो क्या होगा? रिटार्डेशन का, विच क्रिएट्स एन रेजिस्टेंस इन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स. देखो हम हमेशा क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन का जो ऑरिजिन होता है दैट्स अ रिलेटिव मोशन. मान लो कि सारी की सारी लेयर्स जो होती वो एक ही स्पीड से मूव करती तो फिर कोई भेदभाव नहीं होता, एंड इन दैट केस रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं. और अगर रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी का जन्म ही नहीं होता. सो दिस प्रॉपर्टी इज अराइजिंग फ्रॉम द आइडिया दैट देयर इज अ relative motion between the layers, and so there is going to be this kind of the fluid friction force coming into play. Now to understand this term, जो कि हर लिक्विड के लिए सिग्नेचर कैरेक्टरिस्टिक टर्म है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? द विस्कोसिटी कोफिशिएंट, जो कि हमें ये बताएगी कि किस पर्टिकुलर लिक्विड में ज़्यादा विस्कोसिटी है और किस पर्टिकुलर लिक्विड में कम विस्कोसिटी है. इस टर्म को पढ़ने के दो तरीके होते हैं. द फर्स्ट इज नोन एज द डायनामिकल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं विद द टर्म ईटा डी. And the second is known as a kinematical coefficient of viscosity. So these are the two different ways of understanding this coefficient. अब इसको हम ईटा के लिख सकते हैं. अब देखो एक्चुअली में जो डायनामिकल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये ज़्यादातर लिक्विड्स के लिए यूज़ करा जाता है और काइनेमेटिकल कोफिशिएंट इज यूज मोस्टली फॉर द केस ऑफ द गैसेस. मतलब इनकी जो वैल्यूज होंगी वो थोड़ी डिफरेंट भी होंगी. मतलब जहाँ पर काइनेमेटिकल बिहेवियर को ज़्यादा स्टडी करना है वहाँ पर आप इस टर्म काइनेमेटिकल विस्कोसिटी कोफिशिएंट को यूज़ करेंगे. बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कोई मेंशन आउट नहीं है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? द डायनामिकल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी एसआई यूनिट जो होती है दैट्स नोन एज पॉइजली, राइट? POISEULLI, पॉइजली. इसको हम लिख सकते हैं एज कैपिटल P कैपिटल I, और इसकी जो CGS यूनिट है उसको हम बोलते हैं पॉइज. देयर मस्ट बी अ कन्वर्जन. So 1 poisely is taken as equal to 10 poise. That's a standard conversion over here. पानी की बात करें, अल्कोहल की बात करें, they are supposed to be relatively low viscosity fluids. बड़े हल्के होते हैं, उनमें resistance to the flow बहुत कम होती है. If you look about the water, तो उसकी जो
विस्कोसिटी वैल्यू होती है, विस्कोसिटी डायनामिकल कोफिशिएंट वैल्यू, दैट इज अराउंड 10 पावर माइनस 3, 10 power minus 3 Poisson, so it's a very weak value. And if you're going to talk about the gases, it will be 100 times lesser. That means उनका जो order होगा, that will be around 10 power minus 5. So the viscosity of the gases is further lower. So एक point मेरे को समझ में आता है कि अगर हम viscosity generalize कर रहे हैं fluids के लिए, पर ऐसा है नहीं मतलब कि जो viscosity का reason है for the case of the liquids वो थोड़ा अलग है, और for the case of the gases थोड़ा अलग है. So what is going to be the reason? Let's have a focus on that. तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स में किस वजह से विस्कोसिटी प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर पाते हैं, एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज द कोहेसिविटी बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स. देखो, हम डेंसिटी बोलना नहीं चाहते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास हनी है और पानी है, और हमने दोनों को ग्लास में डाल के ग्लास को इन्वर्ट करा और उनको नीचे आने का मौका दिया, तो पानी तो हरा बिल्कुल आराम से नीचे आ जाएगा, बहुत इजीली नीचे आ जाएगा, विच विल सिग्निफाई कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी, तो आप बोलोगे कि भाई ऐसा है कि इसमें विस्कोसिटी कोफिशिएंट बहुत कम है. लेकिन जब हम हनी की बात करेंगे तो हनी में इतना आराम से मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, और उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस टू द फ्लो दिखेगी. अब कोई फर्स्ट आइडिया से इस बात को बोल सकता है कि हनी वुड हैव बीन डेंसर, बट वी डोंट लाइक टू यूज दैट टर्म. इंस्टेड वी लाइक टू यूज द टर्म एज द cohesivity. So that is a cohesivity between the liquid molecules is going to be the reason for the viscosity. पर ये तो सीमित है किसके लिए? लिक्विड्स के केस में. क्यों? क्योंकि अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में तो पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि कोहेसिविटी का तो नामो निशान हमें नहीं मिलेगा. सो इन दैट केस द रीजन फॉर द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस हैव टू बी एक्सप्लोर्ड. और गैसेस में हमारे पास एक थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, जो हमें समझाती है अबाउट द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस, and they continuously collide with the walls of the container and show their presence. आपस में भी कोलाइड कर जाते हैं. अगर मान लो कि ये जो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर ही नहीं रहे हैं तो प्रॉपर्टी जनरेट नहीं होगी. बट व्हाट इफ दीज मॉलिक्यूल्स of the gases start colliding with each other? So there is going to be a molecular momentum exchange, and if there is a molecular momentum exchange, so that gives rise to द प्रॉपर्टी ऑफ द विस्कोसिटी. मतलब रेट ऑफ मॉलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज होगा तो फोर्स डेवलप होगी, और जो फोर्स है दैट विल बी नोन एज द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी. मतलब एक मॉलिक्यूल जा रहा था वॉल से टकराने के लिए, लेकिन उसके बीच में एक और मॉलिक्यूल ने आके उसके साथ कॉलिजन कर लिया, उसके पाथ को चेंज कर दिया, तो समथिंग लाइक अ रिस्ट्रिक्शन, समथिंग लाइक अ रिस्ट्रिक्शन टू द मूवमेंट. तो अगर हम केटीजी में समझते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो स्पीड होती है, जो आरएमएस स्पीड होती है, उसी की वजह से रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है, उसी की वजह से मॉलिक्यूल में मोमेंटम होता है, और जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो फिर मॉलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज हो जाएगा. तो जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज होगा इसका मतलब विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा है, जितना कम मॉलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज होगा इसका मतलब विस्कोसिटी कम है. तो हम एक क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, दैट इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर चेंज ऑन द विस्कोसिटी बिहेवियर. एक बार फिर से हमें इस आंसर को दो पार्ट्स में देना पड़ेगा, बिकॉज जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन टू यू दैट द विस्कोसिटी कॉज इज डिफरेंट फॉर द केस ऑफ द लिक्विड्स एंड फॉर द गैसेस. तो अगर मैं बात करता हूं फॉर द केस ऑफ द लिक्विड्स, सो इफ आई एम टॉकिंग फॉर द केस ऑफ द लिक्विड्स, नाउ इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर इंक्रीज क्या होने वाला है? और द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू ड्रिफ्ट अपार्ट, थोड़ा दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब कोहेसिविटी डिक्लाइन पे आ जाएगी. So the cohesivity among the liquid molecules is going to suffer, it is going to decrease, and since the viscosity reason in the liquids is cohesivity, so therefore the viscosity for the liquids is going to be decreasing. And if I'm going to talk about the case of the gases, is the answer going to be the same? No. Reason, because if I increase the temperature, what happens? Oh, the RMS speed of the molecules increases. The RMS speed is proportional to root of absolute temperature. So if we increase the temperature, अगर temperature बढ़ाएंगे तो natural सी बात है कि RMS speed बढ़ेगी, तो जो molecular momentum exchange है वो क्या करेगा? Increase करेगा. So it increases the rate of
द मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, और ऐसा होने की वजह से the viscosity for the gases is going to increase. Isn't this a beautiful character? Now I can produce that idea in front of you in the form of a graph also, which means that suppose I am sketching a graph and I am checking up the behavior of the viscosity, that is a dynamical viscosity coefficient, and a dynamical viscosity coefficient variation with the temperature. तो मुझे समझ में आएगा कि एक ग्राफ अगर मैंने ऐसे बनाया and the second graph which I am sketching like this, so which graph is for which state, which means अगर भी देखो viscosity coefficient की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो किसके बारे में बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस, क्योंकि गैसेस के केस में टेम्परेचर के साथ में मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज इंक्रीज हुआ, सो विस्कोसिटी इंक्रीज हुई, सो देयरफॉर दिस ग्राफ इज फॉर द गैसेस. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ द लिक्विड, सो लिक्विड्स में क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, कोहेजन कम होने की वजह से विस्कोसिटी में ड्रॉप आया, एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज फॉर द केस ऑफ द लिक्विड्स. सो whatever we have learned today, अभी तक जो हमने समझा है, this all is an idea which is dedicated to the article of the Newtonian fluids. So what do we mean by the Newtonian fluids? Newtonian fluids का मतलब बहुत ही आसान है कि जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं उन्हीं को न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोला जाता है. वाटर हो सकता है as a one of the Newtonian fluids, and you can have various other castor oil हो सकता है. There are many other fluids, benzene हो सकता है. There can be many other fluids which can behave as a Newtonian fluids. अच्छा, हम उसको समझेंगे कैसे, मतलब आसान तरीके से. देखो, या तो उसका एसोसिएटेड फॉर्मूला हो या तो आपके पास उसका ग्राफ हो. सो ग्राफ किसके बीच में, ध्यान रखना, जब हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं ना तो ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन. यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ नहीं है. यहाँ पे जो ग्राफ है दैट इज बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड बिटवीन द शियर रेट. इसका मतलब दैट्स अ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. पर इसकी तो एक आसान टर्म हम ऑलरेडी बना चुके हैं. कौन सी? दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट. इसका मतलब हमने जो ग्राफ बनाया है वो किसके बीच में बनाया है? between the shear stress and between the velocity gradient dv upon dy. तो इससे ध्यान आया कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसको लिखते कैसे हैं. रिटन एज सिग्मा टी एज इक्वल टू ईटा इंटू dv अपॉन dy. ओ, इससे ये समझ में आया कि ईटा को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा टी अपॉन dv अपॉन dy. इससे ये समझ में आता है कि इस ग्राफ की जो स्लोप है that is nothing but the dynamic coefficient of viscosity. So that's our Newtonian fluids. सारे के सारे fluids जो हमें मिलते हैं वो सारे Newtonian fluids नहीं होते हैं. So they are labeled as non-Newtonian fluids. हमारा जो syllabus है वो constrained है to discuss about the Newtonian fluids, but just have a glimpse of what the non-Newtonian fluids are like. So that pink line in this diagram is showing to you the Newtonian fluids, which of course is a line passing to the origin and is guided by the expression that sigma t is equal to eta into dv upon dy. But you can see that there are other graphs over there which are curved, and there is a straight line also, but it has some yield stress, which means that the equation for this can be something like sigma t is equal to eta into dv upon dy and plus some sigma naught. That means there is some yield stress over there, and for the curves you can have something equations like this, that sigma t is equal to eta into dv upon dy raised to the power n, something like this, and n is not equal to 1. So that is something for non-Newtonian fluids. तो जो न्यूटोनियन नहीं है वो क्या है? नॉन न्यूटोनियंस है. सो दैट्स व्हाट द टुडे सेशन वाज बेस्ड अपॉन. हमने जो सोचा था उतना हमने आज के सेशन में कवर अप करा. वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द विस्कोसिटी. जो हमने समझी, इट्स अ प्रॉपर्टी व्हिच इज an index or a measure of the opposition to the fluid flow, a resistance to the fluid flow. In the case of the
Gases, it is because of the rate of molecular momentum exchange, and in the case of the liquids, it is because of the cohesivity between the liquid molecules. To understand that, we have the different laws. आज हमने focus करा on the law which is the Newton's law of viscosity, and we saw कि जो Newton's law of viscosity है उसको जो भी fluids obey करते हैं, ऐसे fluids को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जो ऑफ कोर्स इस लॉ को ओबे नहीं करते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे, एज ए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, सस्पेंशन फ्लूइड्स या टूथपेस्ट, है ना। सो बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली यू एंजॉयड एवरी बिट ऑफ द सेशन। थैंक यू।